Let's begin with the Bhagavad Gita's shloka when he says, Yada yada hi dharmasya glanir bharat adharmasya abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamya. Try and understand what this means. So Krishna says Hindus feel, we read Bhagavad Gita, and Krishna says that whenever jab jab dharma ki glani hogi, I will come to, to slaughter the adharmis. Nothing like that. God has made the creation. Why should he slaughter anybody? Hare Krishna. Whenever we forget what is God, whenever we forget what is God? I mean, our goal of life, then he takes a form. Goal of life is God. God is a word, a three-letter English word. Impersonal, just like Brahman. Brahman is impersonal word. Allah, impersonal word. There is not Allah is not a name of a person. Moses asked the burning bush, on the Kohet Tur, Mount Sinai. He asked him, "Who are you?" And he says, "I am. I am. Who are you? I am. But what are you? I am what?" He said, "I am." Impersonal. I am means Brahman. Brahman means Bruhat Aham. Bruhat Aham means Khuda. Khuda. Khuda means you. Not the one which you think you are, but the one which you truly are. I am means I cannot be denied, but I cannot be understood. What a paradox. I cannot be denied. I am, but you can't understand me. And you can't understand me, then it's called Allah. Allah. समझा नहीं जा सकता. Somebody, a young man came to me yesterday and says, "You're a doctor, sir. You're very charming, let me tell you." Well, do you believe in God? Hare Ram. I said, "You called me charming?" Charm is God. So if I say I believe in God, it doesn't mean I believe in a person. I believe in that charm. Charm which is not a put on. Charm which is natural. Happiness which is not gained from something or someone. Happiness which is existential, which is Adi Sach, Jugadi Sach, Habi Sach, Hosi Sach, which was there also, which is there, which will always be there. How did it come to experience? Which is there in everyone. How did it come to experience? Through the agency of the Guru. Who is a Guru? Who shows you that there is something called charm. There is something called attraction, which is otherworldly. Because you can either doubt it or you can believe it. You might, how can you doubt it? You can think or you can doubt that it might be a put on. But there would something inside you would say it doesn't look like a put on. It looks like natural.
So when I saw my guru first, he just looks like another human being with a little different hairdo, with a little different colored dress. But there is an unmistakable charm. There's an unmistakable stability. There's an unmistakable humility. There's an unmistakable attraction. That is what is God. Person is not God. These things is God. God is what attracts you. Krishna is that which attracts you. Akarshan. Krishna. Before Krishna, after Krishna, Krishna said that whenever people lose their path, what path means? What is my goal of life? Whenever they lose their path, I will take a form. But before Krishna, what was happening? Oh, then it might be Ram. And then before Ram, what was happening? This need for the path has been there since human being came into being. Before Prophet Muhammad, where was Allah? Before Moses, where was I? How did this whole process begin? There is a deep down need in each one of us for finding that which can satisfy me. We keep trying to satisfy ourselves with various things, but finally we get tired that nothing is satisfying me. Why is life been made like this? And that's when you happen to see your own Ishwar, Ishta, Guru, the charm. And then you start wondering, where does he have this charm from? You may start calling him names like he's an avatar or he's a guru, or you may call him whatever. You call him a Paigambar, or you may call him, any name in any language which you may give him. But Ishwar means Ishta. Ishta means beloved. It's a deity. It's a deity. It's your personal deity who shows you that there is a way. And that's when you say, आप जैसा जिंदगी में कोई आए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए. बात बनानी ही तो है ना, बात ही तो बन नहीं रही. हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, उनकी शादियों से, प्रमोशन से, स्टडीज से, यूनिवर्सिटी टॉप करने से, स्पोर्ट्स से, किसी से तो बात नहीं बनी ना, खालीपन तो जा नहीं रहा. सो बात जब बन जाए उसको समझ लो कि गॉड मिल गया. और जिसकी भी बात बनी हुई है समझ लो कि उसको ये अल्लाह दिखता है. दिखता है. जिसको देखा जा नहीं सकता वो उसको दिखता है. दिखता है तभी तो उसकी बात बनी हुई है, नहीं तो कैसे बात बन सकती. बात तो केवल अल्लाह से ही बन सकती. हरे राम. अमीर होने से नहीं बनती, नाम शोहरत से नहीं बनती. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वम मानसु. अमृत मिल जाता है, समझ आ जाता है कि अमृत क्या होता है. कोई भी एक शब्द को पकड़ लो, उसकी गहराई में जाके तो देखो. अमृत ही क्या होता है समझ लो, सोच लो. हम समझते हैं अमृत वो होता है जो हम
अगर हम पी लेंगे या खा लेंगे कड़ा प्रसाद या बतासा, तो उसके बाद हम मरेंगे नहीं, अमृत। ऐसे सोच लेते हैं। आई ऑलवेज poke myself and poke everyone. Opposites can only give you the meaning of the word. What is the opposite of Amrit? The opposite of Amrit is Mrit. फिर इसका मतलब है कि जिसने अमृत नहीं पिया वो क्या है? वो मृत है। वो मरेगा नहीं, वो मरा हुआ है। मरेगा तो बाद की, फ्यूचर की बात है। वो मरा ही हुआ है। और जिसने अमृत पी लिया है वो अलाइव, और वो कभी मर नहीं सकता क्योंकि वो अलाइव। और जो मरा हुआ है वो भी कभी नहीं मर सकता, वो तो पहले ही मरा हुआ है। सो अमृत नाम परमेश्वर तेरा। परमेश्वर कौन होता है? मेरा अल्टीमेट बिलवेड, जिसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति। भक्त्या अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम परंतपः। ओ अदरवर्ल्डली वन, जब तक तुम्हारी मेरी अनन्य भक्ति नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे नहीं जान सकते। एट द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, व्हेन यू बिकम अ गुरमुख, गुरमुख होवे ता एक को जाने, हूं मैं दुख न संतापे। फिर बस वो उस एक तत्व के साथ जुड़ जाता है, फिर वो अमृत हो जाता है, उसकी बात बन जाती है। आओ संत प्यारियो अकाथ की करे कहानी, कहानी करे कहानी अकाथ केरी, कित द्वारे पाइए। तन मन तन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्निए पाइए। हुक्म मन्नो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कथो अकथ कहानी। अकथ होता है जिसको जाना नहीं जान सकता, अल्लाह। सो अल्लाह क्या होता है? गुरु के थ्रू ही पता चल सकता है। ठीक है, अल्लाह एक ओंकार है, पर एक ओंकार गुरु प्रसाद। जब तक आप गुरुमुख नहीं हो गए, देखिए सिख और हिंदू और मुस्लिम तो हम सब बन बैठे। व्हाट डू वी मीन कि मेरे को कृष्णा से प्यार है इसलिए मैं हिंदू हूं, मेरे को गुरु नानक से प्रेम है इसलिए मैं गुरु सिख हूं, मैं अल्लाह से प्रेम करता हूं इसलिए मैं मुस्लिम हूं। आशिक आशिक सबको कहे, टेढ़ी पगड़ी तर के। पगड़ी सी टेढ़ी बना के हम सिख बन जाते हैं, या टोपी डाल के हम हिंदू बन जाते हैं। आशिक आशिक सबको कहे। हर एक बंदा अपने आप को कहना चाहता है कि मैं बंदा हूं, मैं बंदगी करता हूं अपने ही भगवान के साथ, मगर नहीं हो सकती, इतनी आसान नहीं है। आशिक आशिक सबको कहे, टेढ़ी पगड़ी धर के, सिर तो परा इश्क दा डेरा, सब मुड़ आए डर के। जब सिर से परे है इश्क का डेरा तो सिर कहाँ रह गया, तो पगड़ी कहाँ डालोगे, टोपी कहाँ डालोगे? सिर तो परा इश्क दा डेरा, सब मुड़ाए डर के। सजना दे उस महल बिहारी, कोई विरला पहुंचा, कोई विरला पहुंचा वहां तक। कैसे? सजना दे उस महल बिहारी, कोई विरला पहुंचा मर के। मर जाओगे तब समझ आएगा अल्लाह क्या है, इश्क क्या है, बिलावित क्या है, गुरु क्या है।
और ये बॉडी के मरने के बाद नहीं कभी भी हो सकता। ये तो जागते जीते जागते मरना पड़ेगा। ये प्रेम ही है जो आपको मार सकता है। तुमसे मोहब्बत की हमने, जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। एक राज है ये, जब हो जाएगा तभी पता चलेगा। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है, जीना आ जाता है। मरने के बाद, मरने से पहले नहीं। एक बार मर के देखो। willingly enter into this world। क्यों? क्योंकि बार बार श्री कृष्ण आएंगे। जब जब आप भूल जाओगे कि इश्क क्या होता है, प्रेम क्या होता है, रास्ता क्या चाहिए मुझे, तब तब श्री कृष्ण आएंगे। चाहे वो श्री कृष्ण बन के आए, चाहे श्री राम बन के आए, चाहे वो मोहम्मद बन के आए या जीसस बन के आए, कोई भी बन के आएंगे और आप की बात बन जाएगी, सलामती हो जाएगी, बात बन जाएगी। तब समझ आएगा इस्लाम क्या होता है। सलामती हो जाएगी तो मरना जीने से परे चले जाएंगे। और कोई फोर्स नहीं कर सकता। जब होना होगा तो हो जाएगा। जब ये इश्क होना होगा तो हो जाएगा। Nobody can force it upon you. Neither can you force it upon yourself. But when it has to happen, it'll happen. और जब होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, मगर थोड़ी थोड़ी बात बननी शुरू हो गई। थोड़ा थोड़ा मरना शुरू हो गया हूं। वो अदर वर्ल्डली चार्म, वो अदर वर्ल्डली ह्यूमिलिटी आ जाएगी। समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा गुण क्या है, मर जाना, अहंकार का मर जाना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिस ईगो को बचा के रखते हैं सारा दिन, वो ईगो को स्वयं ही आप दे दोगे। मुझे नहीं चाहिए, इसी की वजह से मैं मर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। फिर आप आकार न रह जाएंगे, निरंकार हो जाएंगे। आकार को क्या बोलते हैं? अहंकार। अहंकार रह ही न जाएंगे, निरंकार हो जाएंगे। फिर समझ आएगा बुद्ध क्या है, सत्य साई बाबा क्या है, कृष्ण क्या है, मोहम्मद क्या है। ये तो फॉर्म्स हैं टू गिव अस अ डायरेक्शन which you are seeking. Each human being is seeking a direction, and the direction has been called dharma. So yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत। कोई डूज एंड डोंट्स धर्म नहीं है, वो तो रिचुअल्स हैं। रास्ता भूल गए हैं कि चाहिए क्या। फिर जब रास्ता दिख जाएगा तो फिर आप कहेंगे ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश। मेरे खाना खराब, मेरे शौके खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश। मुझे तो रास्ता चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे रास्ता चाहिए। रास्ता जो कि मेरी बात बना दे। फिर आप भटक नहीं सकते। एक बार रास्ता मिल गया तो, अभी रास्ता नहीं मिला। The world is running very fast, but without a direction.
हाउ वुड यू रीच एनीवेयर? एंड जिसको रास्ता मिल जाता है उसको भागने की जरूरत भी कहाँ है, वो तो चाहे आराम से चलता रहे, वो तो पहुंच ही जाएगा। रास्ता ही तो चाहिए। फिर कोई कारवां नहीं चाहिए, कोई प्रोसेशन नहीं चाहिए, कोई सिखों की या हिंदुओं की या मुस्लिम्स की भीड़ नहीं चाहिए। फिर तो अकेला ही चलेगा वो। ना हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश। मेरे शौक के खाना खराब को, खाना खराब क्या होता है? बुरी हालत हुई पड़ी है, पिक्चरें भी देखता हूँ, टीवी भी देखता रहता हूँ, सारा दिन फोन भी इधर उधर करता रहता हूँ, स्विट्जरलैंड भी चले जाता हूँ, यूरोप भी घूम लेता हूँ, बात तो बनती नहीं कहीं पे भी। हिमालय में भी जाके देख लिया, आश्रमों में भी भटक लिया, प्राणायाम भी कर लिए, तो प्राणायाम तो हुआ ही नहीं। प्राणायाम का मतलब तो समझ ले, सांस इधर उधर 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 करते रहेंगे, ठीक है, लंग्स की एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर्स विल बी हैप्पी, बट प्राणायाम का मतलब क्या हुआ? प्राणों को कोई आयाम तो मिल जाए, मेरी बात तो बन जाए। प्राणों को, सांसों को नहीं, मेरे प्राणों को, मुझे जान तो आ जाए, मेरी जान को जान तो मिल जाए। हरे कृष्णा, वो प्राणायाम है। मेरे प्राणों को आयाम मिल जाए, कोई सहारा तो मिल जाए, कोई खड़े होने के लिए कोई some little firm ground. आई एम स्टैंडिंग ऑन क्विक सैंड। दलदल में बैठा हूँ, खड़ा हूँ। खड़ा तो होने के लिए, पांव रखने के लिए जमीन तो मिल जाए। एंड गुरु नानक वुड कम एंड से, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जहाज है चाहिए, सारा दिन कैसे भाव सागर में हाथ पैर मारते रहोगे? एक जहाज चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठा हूं। सब समझ आ जाएगी, नानक क्या है, गुरु गोविंद क्या है, गुरु अंगद क्या है, उनको नाम मिल गया है, बस बात बन गई। तभी तो कह सकते हैं, आओ संत प्यारे हो कथ की करें कहानी। चलो तुमको बताएं अल्लाह क्या होता है, गॉड क्या होता है। जिसने देखा होगा वही तो बता सकेगा ना, जिसने नहीं देखा हो वो कैसे बोलता रहेगा? वो तो श्लोक ही बोल सकता है, हरे राम। और जिसको दिख जाता है उसको बोलने की कहाँ जरूरत है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? ये तो वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती। आपको आंखों से पता चल जाएगा कि क्या बात है, ये सीन क्या हो क्या रहा है। मेरे से कोई पूछता है कि आप बताइए सत्य साईं बाबा के बारे में कुछ, मैं बोला बड़ी किताबें हैं देख लीजिए। नहीं आप बताइए। भाई मैं क्यों बताऊं? नहीं आप की बात पे हमको विश्वास हो जाएगा, नहीं मेरी बात पे क्यों विश्वास हो जाएगा? नो, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। वाह वंडरफुल। फिर अगर मेरे में ही तुमको कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो, एक बूंद में अगर आपको डिफरेंट दिख रहा है तो सागर के बारे में क्या बोलेगी एक बूंद? हरे कृष्ण। जो सिख होता है वो तो एक बूंद है गुरु की। गुरु तो सागर है। एक बार प्रेम करके देखो, फिर पता चलेगा गुरु क्या होता है, इष्ट क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, अल्लाह क्या होता है, जीसस क्या होता है।